फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट हाउ टू फाइंड ऑड काउंट एंड इवन काउंट इन गिवन नंबर। Odd count and even count means number of odd digits and number of even digits in n. Here I have a number 345. So what should be the even count? Even count should be 1 because 4 is the only even digit. And odd count should be 2 because 3 and 5 both are odd. So I can write here that even count is equals to 1 and odd count is equals to 2. And now we have to learn that how we can extract each digit of a number and how to find that that particular digit is even or odd. And this is the heart of our today's video because this is the most important topic. And this topic will help programs like palindrome or sum of digits and many like that. So let's learn. Hmm. Here my n is 345. So first I have to extract one digit. Suppose I am extracting 5. So if I am extracting 5, I have to check that 5 is odd or even. So for odd or even, there is condition modulo 2 equals to 0 or not. So that we can do easily. Suppose if I am giving name digit modulo 2 equals to 0, then even count should be plus plus. And else, if the number is not even, then what should be it? It should be odd. So odd count plus plus. Now we have a snippet of our code here. So if I am extracting 5, it will check that given number is uh, given numbers 5 digit, which is odd or even. So odd or even part is done. Now we have to learn that how to extract a digit. So in previous video, we have discussed that how we can extract a digit using modulo 10 operator. Modulo operator is used to extract last part of a number. Suppose my number is 57. Then what should be 57 modulo 10? 57 modulo 10 would be 7. And if my number is 68, then what should be 68 modulo 10? 68 modulo 10 would be 8. That means modulo operator always gives you reminder. So we have to access this portion. So if I am doing modulo 10 for n, then it will give me 5. And that is what I want, right? That is what I want. So always I am using modulus operator for n and modulus 10. I am storing it into digit. Here my digit is ready. Adjust with some spelling mistakes. Huh. So modulo 10 will give me this digit and for that digit we will check this condition. After this condition is done, what we want that we don't want this 5 furthermore because for 5 we have already discussed everything. So we want to remove this. For removing this, we have to use division operator. And what division operator will do? Same as modulus, but let me tell you something that if 345 divide 10 is equals to 34.5, and if I am converting this 34.5 into integer, then what should be my answer? 34 only. So that's it. This is what we want, 34, right? So each and every loop will give me
this, and we have to divide it. So n should be n modulus 10. N divide 10, sorry. N is equals to n divide 10. And now, if we have all of this, then there should be condition that where to stop or where to start. So we have condition for where to stop. If we are doing dividing n each and every time. So for first time it will be 34.5 और उसका इंटीजर वर्जन क्या होगा 34. And in the second time we have 3.4. 34 divided 10 refers to 3.4, and 3.4's integer portion will be 3. And next time we have to divide 3 divided by 10, and which is 0.3, which gives you integer term 0. So if again I am dividing 0 by 10, then it will give me answer 0 only. So when my division is 0, I have to stop. Let me write here, while n is not equals to 0. मतलब जब भी n होगा तब तो मुझे क्या करना है, रुक जाना है. जब n 0 नहीं है तब तक मेरा ये वाला कोड रन होगा. अभी हम एक बार देख लेते हैं और फिर एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं. जब भी मेरा n 0 नहीं है तब मुझे क्या करना है, डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है मॉड्यूलो 10 से. डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, मॉड्यूलो 2 करके चेक करेंगे क्या मेरा डिजिट है वो इवन है. मतलब अगर डिजिट मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल्स टू 0 हुआ मतलब मेरा डिजिट इवन है. तो इवन है मतलब इवन काउंट प्लस प्लस होगा. और दूसरी बार अगर जो नंबर है वो इवन नहीं है तो फिर एल्स में क्या बचेगा, ऑड है. मतलब हमारा ऑड काउंट प्लस प्लस होगा. अभी 5 है उसके लिए या फिर कोई भी लास्ट डिजिट के लिए मेरा काम हो चुका है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है. तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला डिजिट है उसको रिमूव करेंगे. कैसे, डिवीजन ऑपरेटर से. और डिवीजन ऑपरेटर करने के बाद हमें लास्ट वाला डिजिट है वो जब भी इंटीजर में कन्वर्ट होगा तब वो निकल जाएगा फ्रैक्शन में, और हमें आगे के 2 3 या जितने भी डिजिट बचे होंगे वो मिलेंगे. यही हमें चाहिए. हम एक बार 345 के लिए ही ट्राई रन करके भी देखते हैं. पहले मैं ये सब कुछ रिमूव कर देती हूँ और फिर हम ट्राई रन करेंगे. और ड्राई रन के लिए हमारे पास कितने वेरिएबल्स होंगे, एन होगा और क्या होगा, डिजिट होगा. हर बार डिजिट है वो अपडेट होगा, इवन काउंट होगा और ऑड काउंट होगा. हाँ, रेडी. अभी देखो सबसे पहली बार जब n आता है या n इज नॉट इक्वल्स टू 0, बात ट्रू है. ट्रू है मतलब हमें एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है मॉड्यूलस 10 से. सो हम डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मॉड्यूलो 10 से. अभी मॉड्यूलो 10 से डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिजिट मॉड्यूलो 2. व्हाट इफ डिजिट मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऑड काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो इवन काउंट प्लस प्लस. फॉर 5, if we are writing for 5, then 5 modulo 2 is not equals to 0, मतलब क्या हो जाएगा, ऑड काउंट प्लस प्लस होगा. और ऑड काउंट प्लस प्लस होने के बाद 345 डिवाइड 10 होगा मतलब 34.5. लेट मी राइट हियर, एन की वैल्यू 345 होगी. डिजिट क्या मिलेगा मुझे एक्सट्रैक्शन के बाद, 5. और इवन काउंट है वो 0 ही रहेगा, और ऑड काउंट है वो प्लस प्लस होगा क्योंकि 5 है वो ऑड है, मतलब ऑड काउंट 1 हो जाएगा. और मेरा नया n है जो हमने डिवीजन के बाद n इज इक्वल्स टू n डिवाइड 10 जो किया है, उसके बाद क्या मिलेगा, नया n 34.5, उसका इंटीजर वर्जन 34 मिलेगा. ये पहली लूप की बात हुई. अभी जब दूसरी बार लूप चलेगा तब यहाँ पे क्या आएगा, 34 आएगा.
अभी 34 इज नॉट इक्वल्स टू 0, बात ट्रू है, कंडीशन इज ट्रू, सो वी हैव टू एंड मॉड्यूलो 10, we have to do modulo 10. For 34 modulo 10 would be 4. So यहाँ पे मेरा डिजिट क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा। और 4 के लिए हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है, या 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल्स टू 0। यस, कंडीशन इज ट्रू, मतलब इवन काउंट प्लस प्लस होगा। यस और नो, इवन काउंट प्लस प्लस होगा। यस, एंड फॉर 34 वी विल डू 34 डिवाइड 10, and 34 divide 10 which is equals to 3.4। यहाँ पे लिख देते हैं हमारा दूसरा इटरेशन क्या होगा, 34 n है और हमारा डिजिट 4 मिलेगा हमें। फिर इवन काउंट प्लस प्लस होगा क्योंकि हमारा डिजिट 4 है, सो इवन काउंट 1 हो जाएगा और ऑड काउंट ऑलरेडी 1 था। अभी नया n क्या है, 34 डिवाइड 10 3.4 और उसका इंटीजर वर्जन 3 है। ये हमारा सेकेंड इटरेशन हुआ। नेक्स्ट टाइम वी हैव टू चेक फॉर 3 बिकॉज हमारा नया n है वो 3 है, या n इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। सो कंडीशन ट्रू है, मतलब 3 मॉड्यूलो 10 करना पड़ेगा। अभी इसके पहले के एक वीडियो में मैंने बोला था कि जब भी हम सिंगल डिजिट में मॉड्यूलो 10 करते हैं तो जो डिजिट है वही हमारा आंसर होगा। मतलब यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, 3 मॉड्यूलो 10 का 3 होगा। सो यहाँ पे n है वो 3 है और डिजिट भी क्या रहेगा, 3 ही मिलेगा। फिर 3 के लिए मुझे ये कंडीशंस चेक करनी है, तो 3 इज अ ऑड नंबर, सो यहाँ पे ऑड काउंट प्लस प्लस होगा। यस और नो, यस। एंड फिर से 3 डिवाइड 10 होगा। देखते हैं, मैं यहाँ पे और एक इटरेशन लिख देती हूँ। 3 मेरा नंबर है n, क्या मिलेगा मुझे, डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी 3 ही मिलेगा, मॉड्यूलो 10 करने के बाद भी। और इवन नंबर है, नहीं इवन नहीं है, मतलब पुराना वाला काउंट 1 है वो एज इट इज रहेगा। और ऑड है, हाँ 3 है वो ऑड नंबर है, मतलब मेरा ऑड काउंट है वो प्लस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस होने के बाद 2 होगा। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, 2 लिखते हैं। और n है उसको n डिवाइड 10 करेंगे, मतलब 3 डिवाइड 10 विच इज 0.3, और उसका इंटीजर वर्जन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी नया n है वो 0 है। फिर से यहाँ पे लूप चलेगी तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, n इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। सो यहाँ पे मेरा लूप है वो खत्म हो जाएगा और हमें इवन काउंट और ऑड काउंट मिल जाएंगे। आई होप इसका लॉजिक आपको क्लियर होगा, और अब हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने example.java नाम का क्लास बना के रखा है और उसमें मेन मेथड डिक्लेयर की है। अभी सबसे पहला काम क्या होगा, यूजर इनपुट लेना। यूजर जो इनपुट डालेगा वो नंबर में से हम इवन और ऑड डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसका काउंट लेंगे। पहले इनपुट लेना है, मतलब हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और फिर स्कैनर क्लास बनाना है, मतलब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे मेरा स्कैनर है वो ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, सो आई डोंट हैव टू डू इट मैन्युअली। अभी एंटर अ नंबर, इसमें मुझे एक नंबर इंटीजर n लेना है और sc डॉट नेक्स्ट इंट से हम उसे इनपुट में लेंगे। sc डॉट नेक्स्ट इंट हो चुका। अभी मुझे ऑड डिजिट काउंट और इवन डिजिट काउंट के लिए वेरिएबल्स भी लेने हैं, ताकि मैं उसमें ऑड डिजिट काउंट और इवन डिजिट काउंट स्टोर कर सकूं। सो यहाँ पे इंट इवन काउंट इज इक्वल्स टू 0 एंड इंट ऑड काउंट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हो चुके। अभी हमें क्या करना है, लूप लेना है। लूप लेना है मतलब वाइल लूप,
और कहाँ तक चलना है? जब तक n है वो 0 ना हो जाए तब तक चलना। और हर बार एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे? सपोज इंट डिजिट इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 10, मॉड्यूलो 10 ऑपरेटर से। अभी डिजिट मिल चुका है, उसके लिए हम चेक करेंगे क्या डिजिट मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर डिजिट मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब क्या? डिजिट इवन है। डिजिट इवन है मतलब इवन काउंट प्लस प्लस होगा। अगर डिजिट इवन नहीं है तो क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा, मतलब ऑड काउंट प्लस प्लस होगा। और अभी ये लास्ट वाले डिजिट का काम हो चुका, तो हमें उसे रिमूव करना है नंबर में से। तो कैसे? n इज इक्वल्स टू n डिवाइड 10 से करेंगे। अभी मेरा कोड है वो ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है कि क्या मेरा इवन काउंट है और क्या मेरा ऑड काउंट है। इवन काउंट और वेरिएबल इवन काउंट प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे ऑड काउंट प्रिंट करना है, मतलब ऑड काउंट, और यहाँ पे ऑड काउंट का वेरिएबल। प्रोग्राम को रन करना है, अभी देखते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट में 345 ही डालने वाली हूँ। लेट्स सी अवर आउटपुट। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है। इवन काउंट क्या है? 1 है, और ऑड काउंट क्या है? 2 है। और सपोज मैं और एक इनपुट डाल के देखती हूँ। मेरा इनपुट है वो 489। 489 इनपुट है, मतलब क्या मिलेगा मुझे? जो 4 और 8 है दोनों इवन है, मतलब इवन काउंट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और जो 9 है वो ऑड है, मतलब ऑड काउंट 1 होना चाहिए। मतलब एज एक्सपेक्टेड हमको आउटपुट मिला है। सो आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा कि हमने कैसे ये प्रोग्राम किया, कैसे हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कमेंट दैट आपको ऐसा कोई और प्रोग्राम्स चाहिए, सीखने हैं, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और आई विल मेक श्योर टू मेक दैट वीडियो।